Hello everyone, my name is Sanket Jain. I welcome you all to Psyche Simplified. Welcome to our channel and welcome to our series of NCERT. We already have finished with class 11 NCERT all the chapters. You can see all the videos in our playlist. Today we are going to start with class number 12, the chapter number 1, Variation in Psychological Attributes. Now with the help of this chapter, you will get to know that why relying upon only IQ test is not enough. Okay, so this IQ test, which is given by Binet and Simon, then modified by Terman, it is not a sufficient test to measure the concept of intelligence. Now, with the help of this chapter, you get to know that intelligence is much broader and multidimensional in the context of its understanding. So, we will start with a very famous quote given by Albert Einstein: "Intelligence is more than the IQ test. The measurement of intelligence is the ability to change." Okay, so now you can see intelligence is more than the IQ test. IQ test, which is given by a standard intelligence quotient test, which is introduced by Binet and Simon and then modified by Terman, it just measures the academic intelligence. It does not measure other parameters. For example, the parameter related to creativity, the parameter of emotional intelligence, social intelligence, okay, real life adaptation. These kind of parameters, these kind of dimensions are not covered with the help of standard IQ test. Now you will see in many of the institutions, even in our schools, what is the main parameter? Only the IQ test. If you are good in academic intelligence, then the child is perfect. But what about social intelligence? What about the parameter of handling the academic pressure? इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू कंट्रोल द इमोशन. आप देखोगे आज के टाइम पर a lot of children, a lot of students are committing suicide. Why? Because they are unable to handle the parental pressure. They are unable to handle the academic pressure. Everything is measured just on the basis of IQ test. लेकिन क्या हम बात करते हैं कि कैसे बच्चे इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं? क्या हम इसके बारे में बात करते हैं कि बच्चे कैसे अपना एकेडमिक प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? क्रिएटिविटी के बारे में बातें करते हैं? नहीं बातें करते हैं. रियल लाइफ अडॉप्टेशन के बारे में नहीं बातें करते हैं. तो आईक्यू टेस्ट जो होता है, जो आज भी हमारे स्कूल के अंदर किया जाता है, वो काफी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को मिस कर देता है, जिनको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी वजह से इंटेलिजेंस के लिए आईक्यू टेस्ट पर रिलाई करना इज नॉट सफिशिएंट. आईक्यू टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपका एकेडमिक इंटेलिजेंस बताएगा. आईक्यू टेस्ट नहीं बताता कि आपका इमोशनल, सोशल, क्रिएटिविटी या अदर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस क्या क्या होती है, वो उसको मेजर नहीं करेगा. और यही हमारे जो आइंस्टीन है बताने की कोशिश करते हैं कि आपका जो इंटेलिजेंस होता है, इट इज मोर देन द आईक्यू टेस्ट ओनली. आज इसी को ही हम डीपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. इसका एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे. आगे बढ़ने से पहले आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको उस चैप्टर से देखने को मिलेंगे. यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस जस्ट बाय रीडिंग दिस एनसीईआरटी इन अ प्रॉपर वे. ओके, द क्वेश्चंस इन 2016-20 व्हिच इज कोर एप्लीकेशन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. Ethics and misuse of standard IQ test. Okay, for example, to measure intelligence, to measure aptitude, to measure interest, to measure all these kind of parameters, a lot of standard tests are conducted. So what are the ethical and non-ethical uses of this particular test, uses, misuses of this test? We will see in this particular chapter. Other than this, efficacy, limitation and challenges. Okay, what are the challenges in development and use of psychological test? For example, IQ test given by Binet. What are the challenges in this particular test? What are the features of a standard test? How a test is made? What are the limitations? Factors impeding fair assessment of individual differences. ठीक है, तो ये आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विच कैन बी आंसर्ड डायरेक्टली अगर आप इस चैप्टर को सही तरीके से पढ़ते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. अब हम बेसिक शुरू करेंगे. देखिए, इस चैप्टर का बेसिक क्या होता है. देखिए, एक ब्रांच होती है साइकोलॉजी जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल साइकोलॉजी. अब डिफरेंशियल साइकोलॉजी क्या बात करती है. डिफरेंशियल साइकोलॉजी का कहना होता है कि हर एक इंडिविजुअल ना वेरी करता है, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है. तो मेरे अंदर के साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स या मेरे अंदर के जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, वो बिल्कुल वैसे नहीं होंगे जैसे आपके अंदर के हैं. Each and every individual varies in terms of physical parameters, in terms of psychological parameters. तो अगर हर एक इंसान वेरी करता है, तो हर एक इंसान को मेजर करने के लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा, और उस टेस्ट के बेसिस पे हम बता पाएंगे कि इसके अंदर की पर्सनैलिटी या इंटेलिजेंस कैसा है, इसके अंदर का पर्सनैलिटी या इंटेलिजेंस कैसा है. जैसे कि मान लीजिए आपने एक आईक्यू टेस्ट बनाया. अब आईक्यू टेस्ट क्या मेजर करता है. आईक्यू टेस्ट मेजर ओनली एकेडमिक इंटेलिजेंस, कि आपकी मेमोरी, आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी होती है. मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा है ए, एक बच्चा है बी.
अब हमने बात कर दिया कि भाई हमने एक पैरामीटर बना दिया एकेडमिक इंटेलिजेंस। अब मान लीजिए ए ने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन बी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो हमने क्या कहा कि ए जो बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बी हो सकता है कि वेरी करता हो। अभी हमने बात की इंडिविजुअल वेरी करते हैं, तो बी वेरी कर सकता है, बी वेरी कर सकता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अदर थिंग। हो सकता है कि ए की मेमोरी अच्छी हो, ए का रीजनिंग अच्छा हो, लेकिन बी के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो, बी को म्यूजिक की समझ बहुत अच्छी हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट का तरीका, डायमेंशन उसकी अलग होती है। देयरफॉर द कांसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर, और इसी वजह से हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर एक आपको देखने को मिलेगा। देखिए वेरिएबिलिटी इज द फैक्ट ऑफ नेचर, डाइवर्सिटी इज द लॉ ऑफ नेचर। डाइवर्सिटी आप देखिए हर एक इंसान अलग अलग होगा, तभी हम ब्यूटी समझ सकते हैं, हम सुंदरता देख सकते हैं। अगर हम कहें जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए इस इमेज के अंदर आप देखिए सब लोग, सबकी सेम हाइट है, सेम कलर है, सेम आप कपड़े पहने हुए हैं, सेम एटमॉस्फेयर है, तो आप कैसे बता पाओगे, आप इनमें डिफरेंसेस कैसे बता पाओगे? ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप सब लोग अलग अलग हैं, तो देखिए ये इमेज कितनी सुंदर है। तो अगर ब्यूटी को बताना है, किसी भी चीज की सुंदरता को बताना है, तो डाइवर्सिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है, तभी हमारा देश हमें इतना प्यारा लगता है। अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग लैंग्वेज है, तो डाइवर्सिटी होने की वजह से हम इन चीजों को समझ पाते हैं। ओके, तो यही क्या होता है, यही बेसिक प्रीमाइसेस है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। डाइवर्सिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर, डाइवर्सिटी होंगी, हर एक इंडिविजुअल वेरी करता है, और हर एक इंडिविजुअल वेरी करता है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ट्रेट्स, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। हर एक इंडिविजुअल की हाइट, वेट, स्ट्रेंथ अलग होती है। आप देखोगे कहीं पर भी आपको एक जैसी देखने को मिलेगी। अब ये लॉ ऑफ नेचर है। आप देखिए किसी भी जगह पे जाओ, आपको हर, जैसे मान लीजिए हम एक क्लासरूम की बात करें, तो एक क्लासरूम में आपको अगर मान लीजिए 100 बच्चे हैं क्लासरूम के अंदर, तो 100 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, कुछ की हाइट एवरेज होगी, कुछ की हाइट बहुत कम होगी। तो आपको हमेशा एक ऐसी कर्व देखने को मिलेगी, बेल कर्व इसको कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, हर जगह पर होगा। हर एक सोसाइटी में आपको कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बुरे लोग मिलेंगे, कुछ एवरेज मिलेंगे। हर एक जगह पर आपको कुछ मिलेंगे बहुत इंटेलिजेंट, कुछ मिलेंगे कम इंटेलिजेंट, और कुछ मिलेंगे एवरेज। तो ये वेरिएशन आपको सब जगह देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल और इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स आल्सो। हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल, नॉट एवरी इंडिविजुअल सेम, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज वेरिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ट्रेट्स, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है। अब हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है दो पैरामीटर की बेसिस पर। एक तो हमारे पर्सनल ट्रेट्स जो जनरली स्टेबल रहते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। ठीक है, आप अंदर से ऑनेस्ट हैं, आप अंदर से ईमानदार हैं, आप अंदर से बहुत ज्यादा डिटर्मिनेंट हैं, आप अंदर से बहुत ज्यादा डोमिनेंट हैं। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके पर्सनल ट्रेट्स हो गए, ये आपके इंटरनल पर्सनल ट्रेट्स हो गए। ठीक है, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप ऐसा काम करेंगे, आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा ना। अगर आपकी पर्सनैलिटी डोमिनेंट है तो आपका बिहेवियर उससे इन्फ्लुएंस होगा। मान लीजिए अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप हमेशा ईमानदारी वाले काम करेंगे, करप्शन वाले काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिहेवियर आपका जो होगा वो आपकी पर्सनल ट्रेट से इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन बिहेवियर इस बात से भी इन्फ्लुएंस होगा कि सिचुएशन कैसी होती है। तो ये दो अलग अलग वेरिएशन होते हैं। जो पर्सनल ट्रेट वाले होते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि आपका बिहेवियर इस वजह से इन्फ्लुएंस होता है कि आप अंदर से कैसे हो, आपका ट्रेट कैसा है, आपका इंटरनल ट्रेट कैसा है जो कि स्टेबल रहेगा। ठीक है, दूसरा जो सिचुएशन वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि आपका बिहेवियर इस वजह से इन्फ्लुएंस होता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन कैसी है। मान लीजिए आपका इंटरनल ट्रेट क्या है, ऑनेस्टी, तो आप हमेशा ईमानदारी वाले काम करोगे। लेकिन मान लीजिए कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि आप ऐसा काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा ब्राइब दे दी गई या आप हो गए इन्फ्लुएंस, तो ऑनेस्टी चली गई, सिचुएशन की वजह से आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो गया और आपने करप्ट प्रैक्टिस कर ली। ऐसा भी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि कुछ इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई, जैसे कि आपका पर्सनल ट्रेट है कि आपको हमेशा सच बोलना है, ट्रूथफुलनेस, ये आपका पर्सनल ट्रेट है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपको झूठ बोलना पड़ रहा है तो आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो गया। तो हमारा बिहेवियर हमारे पर्सनल ट्रेट और हमारी सिचुएशन दोनों की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, और बाद में फिर हम साइकोलॉजिस्ट क्या बोलेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ट्रेट आल्सो एंड सिचुएशन आल्सो। तो हमारी इंटरनल ट्रेट और हमारी सिचुएशन दोनों हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगी। इस तरीके से वेरिएशन निकल के आता है इंडिविजुअल्स के अंदर, हर एक इंडिविजुअल में वेरिएशन निकल के आएगा और इस तरीके से हमारी फंक्शनिंग होती है। यही हमने देखा विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। आगे बढ़ेंगे, एनसीईआरटी में आप नेक्स्ट देखेंगे तो देखेंगे कि भाई असेसमेंट कैसे करोगे आप आपके अंदर के। देखिए हम वेरी करते हैं, तो हम वेरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल और इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल। अब देखिए साइकोलॉजी का काम क्या है, साइकोलॉजी का काम ये होता है कि इनके बारे में देखें, असेसमेंट करें आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का। तो हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अलग अलग होते हैं।
जैसे कि इंटेलिजेंस सब लोगों में वेरी करेगा, एटीट्यूड सब लोगों का वेरी करेगा, एप्टीट्यूड सब लोगों का वेरी करेगा। तो इसको असेस कैसे किया जाए, इसका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो होते हैं वो रेंज करते हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी कि रिएक्शन टाइम आपने देख लिया है ना, जैसे कि मैंने आपको कुछ बोला तो आपको कितना अच्छा महसूस हुआ, आपकी फीलिंग कैसे निकल के आई, तो ये सिंपल रिएक्शन हो गया है ना। मैंने आपको कुछ भी कहा तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका क्या रिएक्शन निकल के आता है, ओके, आप क्या कहते हो, आप क्या बोलते हो, तो इसकी बेसिस पर हम कर सकते हैं एक तो। और दूसरा कुछ होता है कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आप हैप्पीनेस, ये भी क्या हो गया, एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हो गया। हर एक इंसान का हैप्पीनेस का लेवल अलग अलग होता है। किसी काम को करने से अगर मुझे खुशी मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही काम करने से आपको खुशी मिले। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट सबके अलग अलग होंगे, तो असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ना है, अगर आपको समझना है हर एक इंडिविजुअल का, तो आपको उसको असेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही हम बात करें इंटेलिजेंस की, अब हर एक बच्चा अलग अलग है। जब तक आप उनको असेस नहीं करोगे तब तक आप उनके लिए कोई भी टेस्ट या कुछ और डेवलपमेंट आप उनका नहीं कर सकते। मान लीजिए क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, अब 30 के 30 बच्चों का जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो तो अलग अलग होगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने एक स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट लगा दिया, और एक आईक्यू टेस्ट लगा के आपने बोल दिया कि भाई 15 बच्चे पास हो गए टेस्ट में तो ये बढ़िया है, हम इन पर ध्यान देंगे, बाकी 15 बच्चे पास नहीं होते तो हम इन पर ध्यान इतना नहीं देंगे। लेकिन इट इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हर एक बच्चे के अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी का इंटेलिजेंस हो सकता है म्यूजिकल अच्छा हो, किसी का स्पेटियल अच्छा हो, ओके, किसी का इंटरपर्सनल अच्छा हो, कोई इमोशनल इंटेलिजेंस में अच्छा हो, तो ये वेरी करेगा। उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा असेसमेंट, तब जाकर आप क्या कर पाओगे, प्रॉपर तरीके से एवेल्यूएट कर पाओगे। ठीक है, तो इंटेलिजेंस को आप असेस कीजिए, पर्सनैलिटी को असेस कीजिए, लोगों के इंटरेस्ट को असेस कीजिए, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है असेसमेंट, क्योंकि इससे क्या होगा, मेजरमेंट, और आप एवेल्यूएट कर पाओगे। कुछ तरीके होते हैं, एक होता है फॉर्मल असेसमेंट, एक होता है इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट हम ज्यादा यूज करते हैं जहां पर हम स्टैंडर्ड टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसमें रिलायबिलिटी होती है। कोई भी टेस्ट होता है साइकोलॉजी के अंदर, वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसका मतलब उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा हर एक टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी होती है। इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, और उन क्वेश्चंस का आप जवाब दोगे, उसके बेसिस पर आपका असेसमेंट किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी की हम बात करें तो इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होगी। कभी कभी मान लीजिए आपने कोई टेस्ट परफॉर्म किया, तो मान लीजिए कोई बच्चा मुझे अच्छा लगता है तो मैंने उसको ज्यादा मार्क्स दे दिए, लेकिन फॉर्मल असेसमेंट में ऐसा नहीं होगा। वहां पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, परफॉर्मेंस आया तभी जाकर क्या होगा, आपका असेसमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सी सेट या एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं, वहां पर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप अगर उनको परफॉर्म करोगे, आप उनको लिखोगे, आप उनको भरोगे, तो आपका काम सही बनेगा, अदरवाइज आपका काम नहीं बनेगा। तो ये होते हैं आपके फॉर्मल असेसमेंट जो किए जाते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्सनैलिटी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरेस्ट, और इन द कंटेक्स्ट ऑफ एप्टीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, तो देखिए साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का असेसमेंट करने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की डोमेन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स हर जगह वेरी करेंगे, मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी। ओके, अब जैसे मान लीजिए एक कोई पॉइंट है या एक कोई लाइन है, तो ये तो क्या है, इट इज लीनियर ना, इट इज अ पॉइंट। ओके, तो ये क्या है, लेकिन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो लीनियर नहीं होते, दे आर मल्टी डायमेंशनल। ओके, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, अगर आपको इसका असेसमेंट करना है तो आपको इसकी लेंथ, आपको उसकी विड्थ, इसकी हाइट सबको देखना पड़ेगा। ऐसे ही ह्यूमन फंक्शनिंग, हमारी जो फंक्शनिंग होती है, हमारे जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो उसकी डोमेन बहुत लंबी होती है। आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपका इंटेलिजेंस भी दिखेगा, आपका एप्टीट्यूड, आपका इंटरेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी। इंटेलिजेंस यानी कि आपकी कैपेसिटी, अगर अभी हम सिंपल से देखते हैं, इसको डिटेल में भी देखेंगे क्या होता है इंटेलिजेंस, आपकी कैपेसिटी रीजन करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कैपेसिटी। एप्टीट्यूड यानी कि आपका पोटेंशियल है ना, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, फॉर एग्जांपल आपके अंदर कितना पोटेंशियल है मैकेनिकल को लेकर या आर्मी को लेकर, एप्टीट्यूड कितना है आपके पास में। इंटरेस्ट यानी कि आपके प्रेफरेंसेस, और पर्सनैलिटी यानी कि आपका एंड्यूरिंग बिहेवियरल पैटर्न। ये हमारे होते हैं पैरामीटर्स, ये हमारी होती है डोमेन। ये सारे, अगर मान लीजिए आप कोई भी एक इंसान है, कोई भी एक इंसान ए, अगर ये कोई भी काम करता है, ये कोई भी फंक्शनिंग करता है, मान लीजिए ये जो इंसान है ये रीडिंग करता है या कहीं भी घूमने के लिए जाता है, तो ये घूमने के लिए जाएगा तो उसके लिए उसका इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व होगा, एप्टीट्यूड भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा, पर्सनैलिटी भी होगा, वैल्यूज भी होंगी, सब कुछ इन्वॉल्व होगा, तभी जाकर एक ही ह्यूमन फंक्शनिंग होगी। वो घूमने के लिए जाएगा, अगर घूमने के लिए जाता है तो मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है ऐसा
कि भाई उसको ये काम कर सकता है, घूमने के लिए जा सकता है, कुछ प्रेफरेंसेस हैं, उसको शिमला जाना है, उसको माउंटेन पसंद होते हैं, इंटेलिजेंस है उसके अंदर, रीजनिंग करेगा, हिसाब किताब करेगा, कितना पैसा लगना है कितना पैसा नहीं लगना है, और उसकी पर्सनैलिटी इस तरीके की है कि उसको एडवेंचर पसंद होते हैं, इसके बेसिस पर अपना वो काम करेगा। तो ये पूरा का पूरा डोमेन होता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का, इसी के हिसाब से ह्यूमन फंक्शनिंग होती है। अब देखिए, अब ये हर एक इंसान के अंदर ये वेरी करेंगे और इनका असेसमेंट हमें करना पड़ेगा। इसी वजह से असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें किसी के भी बिहेवियर को समझना है तो। ठीक है, आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर। अब इसके लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करें? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट? साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए हमें देखा फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके होते हैं। इसके अलावा फॉर्मल के अंदर अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करना। इंटेलिजेंस के लिए अलग टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी के लिए भी आप देखोगे, एप्टीट्यूड के लिए आप देखोगे, इंटरेस्ट के लिए आप देखोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस के लिए हमारे पास आईक्यू टेस्ट है, एक हो गया, एक वेशलर टेस्ट होता है, कॉफमैन बैटरी होता है। पर्सनालिटी के हमारे पास रॉशबैक इंकब्लॉट टेस्ट होते हैं, प्रोजेक्टेड टेक्निक्स होती हैं। एटीट्यूड के लिए हमारे पास गुटमन स्केल होती है, लिकर्ट स्केल होती है। इन सब से हम इनको मेजर करेंगे और किसी भी इंसान की फंक्शनिंग को सही तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरव्यू भी कर सकते हो, यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन अ स्ट्रक्चर वे। काउंसलिंग सेशंस आप कर सकते हैं, आप केस स्टडी कर सकते हैं, एक ही इंडिविजुअल को लंबे समय तक पढ़िए। मान लीजिए चाइल्डहुड में डिप्रेशन हो गया है, समझना है उस पर्टिकुलर पर्सन को कि भाई ऐसा क्या हुआ उसके साथ में, तो उसी इंसान को आपको लंबे समय तक पढ़ना पड़ेगा। दिस इज केस स्टडी। दिस मेथड इज हेवीली यूज्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, ओके। तो ये केस स्टडी हो गया। ऑब्जर्वेशन, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए किसी बच्चे का बिहेवियर देखना है, लेकिन आपको इंटरव्यू नहीं करना, आपको बताना नहीं है उसको, बच्चा घबरा जाएगा। अगर उसको लगेगा कि भाई हमेशा मुझे कोई देख रहा है, तो आप क्या कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए दूर से, नेचुरल सेटिंग में उसको ऑब्जर्व करो, कैसे बातें करता है, किस तरीके से इंटरफेयर करता है, क्या क्या काम करता है, तो ये सब आप कर सकते हैं। सेल्फ रिपोर्ट, ठीक है, क्वेश्चंस पूछ के डेटा को गैदर करो। तो इस तरीके से मल्टीपल मेथड को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक्यूरेट तरीके से किसी का भी असेसमेंट कर सकते हैं। दीज आर द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ओके, इनसे आप लोगों के अलग अलग मेजरमेंट अलग अलग कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर जो हमको ध्यान देना है ना, दैट इज द कंटेक्स्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें हम इंटेलिजेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। अभी मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए एक सिंगल टेस्ट जरूरी नहीं होगा, हमें देखना है अलग अलग पर्सपेक्टिव। जैसे देखिए ये लोग आ गए, बिनेट हो गया, वेस्टर हो गया, गार्डनर हो गया, स्टर्नबर्ग हो गया, ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। सिंपल तरीके से अगर हम कहें इंटेलिजेंस क्या होता है, इट हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट टू द एनवायरमेंट। लेकिन पहले क्या बोला जाता था, पहले एक कॉमन व्यू था, उसके बाद बना एक साइकोलॉजिकल व्यू। तो मैं आपको इसका एक ब्रीफ बताता हूं। देखिए साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी को हम कहते हैं साइकोलॉजी इज अ साइंस। अब साइंस में तो आप सब कुछ मेजर कर सकते हो, यू कैन मेजर एवरीथिंग इन साइंस। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको साइकोलॉजी को साइंस कहना है तो साइकोलॉजी में भी आपको सब कुछ मेजर करना पड़ेगा। तो शुरुआत में क्या हुआ, जब कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इमर्ज हो रहा था, तो साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर ने क्या बोला कि भाई पहले हम ऐसा कुछ टूल बनाते हैं जिससे हम इसको मेजर कर सकें। एक बार अगर हमने मेजर कर लिया तो फिर हम इंटेलिजेंस को साइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे और सही तरीके से डिफाइन कर देंगे। तो शुरुआत में टेस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था। शुरुआत में ऐसे टेस्ट बनाए गए जिनसे ये समझा जाने लगा कि किसी इंसान के अंदर मेंटल अलर्टनेस कितनी है, कितना क्विक है वो, रिएक्शन टाइम कितना स्ट्रांग है, कितना विटी है वो, कितने उसके सेंसेस स्ट्रांग है। अगर ये सब स्ट्रांग है, वेट को डिस्क्रिमिनेट कर पाता है नहीं कर पाता, हियरिंग कैपेसिटी कैसी है, अगर ये सब चीजें उसकी अच्छी है तो हम कह देंगे कि उसका इंटेलिजेंस अच्छा है। तो शुरुआत में इस तरीके के मेंटल टेस्ट बने, लेकिन आपको पता है ये बहुत लिमिटेड भी होता है। आज के समय में हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस, वो इंसान अपने आप को किसी एनवायरनमेंट में कैसे अडॉप्ट कर सकता है। आज के टाइम पर हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब की जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत होती है हमारी फ्रांसिस गैल्टन से। ठीक है, गैल्टन से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर ये व्यू आगे जाता है और एल्फ्रेड बिनेट हमारा पहला एक आईक्यू टेस्ट बनाते हैं, बिनेट और सिमन के साथ में। बिनेट के टेस्ट को वेशलर करते हैं रिजेक्ट और वेशलर अपना खुद का टेस्ट बनाते हैं। वेशलर कहते हैं इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड अडॉप्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। देन गार्डनर निकल के आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट गार्डनर, जो हमारा एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बताते हैं, गार्डनर भी और स्टर्नबर्ग भी। गार्डनर कहते हैं कि भाई इंटेलिजेंस सिर्फ एक तरीके की नहीं होती, म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी होती है, इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल भी होती है, ठीक है, स्पेटियल भी होती है, काइनेस्थेटिक भी होती है, अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस होती है।
ये हमें गार्डनर बताएंगे। स्टर्नबर्ग भी बताएंगे कि भाई इट इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड शेप द एनवायरमेंट। तो इसके बेसिस पर हमें अलग अलग व्यू देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। अभी हम कहते हैं कि भाई इंटेलिजेंस तो क्या होता है आपका, सिर्फ आईक्यू, बस बात खत्म। लेकिन ये हमें अलग अलग व्यू बताएंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहां से देखिए हमारे पास थ्योरीज निकल के आती है और इन थ्योरीज को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक अप्रोच होता है साइकोमेट्रिक, एक अप्रोच होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक ये बताता है कि भाई इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, ठीक है, कि इंटेलिजेंस के अंदर इतनी इतनी एबिलिटीज आपके अंदर होंगी तो आप इंटेलिजेंट हो, खत्म हो गई बात। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एक स्टेप आगे जाके बात करेगा। ये बात करता है इट फोकस अपॉन मेंटल प्रोसेस, कि अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस है तो उस वक्त मेंटल प्रोसेस क्या क्या हो रहा है, कॉग्निशन में क्या क्या हो रहा है, अगर क्या क्या इंसान सोच रहा है, कैसे थिंक कर रहा है, कैसे रीजन कर रहा है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। दिस इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो ये तो क्या करेगा, सिंपल साइकोमेट्रिक अप्रोच ये फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करके क्या करेगा, आपको बता देगा कि भाई ये आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है। अगर किसी इंसान के अंदर ये एबिलिटीज होंगी तो हम कह देंगे कि वो क्या होगा, आपका इंटेलिजेंस होगा। इसमें आपके पास बिनेट, स्पीयरमैन आएंगे, थर्स्टर निकल के आएंगे, ठीक है, जेंसन निकल के आएंगे, गिलफर्ड निकल के आएंगे, इसके अलावा और भी लोग निकल के आते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच मेंटल प्रोसेस के ऊपर बात करेगा। तो यहां पर हमारे पास मेन नाम होता है गार्डनर, जो मैंने आपको बात की, गार्डनर बात करेंगे मेंटल प्रोसेस की, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत जेपी दास मॉडल होता है, जेपी दास इंडिया के ही रिसर्चर है, तो ये बात करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की, कि किस तरीके से हमारी मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो ऐसे कर करके अलग अलग थ्योरी आती हैं। अब वन बाय वन हम हर एक थ्योरी को देखने की कोशिश करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आप इसको देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए, अगर आप साइकोलॉजी को सब्जेक्ट को और डिटेल में, जो हमने अभी देखा इंटेलिजेंस के बारे में हल्का फुल्का, इसको हम और डिटेल में कवर करते हैं इन आवर फाउंडेशन कोर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th of May ऑनवर्ड्स। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है regarding this, then you can message on these numbers and you can also follow us on our Telegram channel. Thank you very much.